Hello, Assalamu alaikum. My name is Saleh Mumtaz Yusuf, and I'm your host today for Talk It Out. Today, we have Ms. Faryal Shahid Khwaja, who is going to be talking us through the different challenges and things that you come across when being in the field of HR. Faryal has been in the field of HR for the last 2 decades almost, and she's working as an HR consultant. Thank you so much, Faryal, for coming in today. Thank you very much, Salia, for having me on your show. It's truly a pleasure to be on your show today. Thank you. And could you just briefly introduce yourself to the audience about Yes, how you've been empowering organizations and people around you? sure. So it's been about plus 19 years of experience now. I started off my journey with some of the multinational names in banking, internationally recognized as well. Then I got the opportunity to serve a hospitality name in Pakistan, the biggest name in Pakistan for like about a decade. And afterwards, also got the chance to work for academia and a family run business, and then also running my own consultancy as well for some time. So, yes, all in all, it was a roller coaster ride, and I learned a lot during the process. And I think now it's high time to, cascade it down and trickle it down and pass it on to the society in somehow whatever difference I can make now. Thank you so much for being a part, and it's a pleasure again. So, Faryal, let's just jump into the real world of HR. What are the main challenges that you might have faced, considering that you've been in the field for quite some time? What has changed over the years? And what do you think are the good and the bad practices that you have come across? Or maybe you might be the person sitting behind and working out those policies in favor of the organizations, and also making sure that you're also working towards the well-being of the employees as well. So you got to play two sides at the same time. So digital transformation, I see, is never about the tools in itself. It's about the trust as well. So transformation without the trust is just a transaction. However, a transformation with trust, I think it's a revolution. Then you truly make the difference and you truly create the changes. ठीक है जी. सो व्हाट हैपन्स कि नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दे डायरेक्टली जंप इनटू दी टेक्नोलॉजी पीस कि हाँ जी हमें अपना सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत है एंड let's just bring in the new technology or the new tools without actually taking the pulse of the organization or running the diagnostics. ठीक है. So one of the companies that I've served had a lot of foreign exposure as well. उनके पास बहुत सारा बाहर का गोरा trained गोरा था, and I've learned from them only that how do you actually conduct the diagnostics for any organization. Let's say अगर उसको आप technology piece की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है. And then obviously आप जब उसकी pulse ले लेते हैं कि where are we standing right now, what kind of waters we are in right now, what is the temperature of that water, only then you can tweak in the changes. सो उससे होता ये है कि बेसिकली वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसलिए नहीं होती है कि आपने कोई फैंसी डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है या आपने कोई ब्रांडेड HRMS का सिस्टम लगा लिया है, बल्कि आई थिंक कि वो ट्रू फैशन में आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है फॉर योर होल ऑर्गेनाइजेशन. सो अगेन गेटिंग बैक टू दैट कि आप जो हैं उसकी पहले डायग्नोस्टिक्स रन करें, आप उसमें फैंसी डैशबोर्ड्स को ट्रू फैशन में लेकर आएँ, एंड उसको जो है जिसके अंदर पहली चीज़ आती है जो हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन में बिग फैमिली रन बिजनेस में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन, जहाँ पे आई हैव सीन दैट कि देयर वर अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. सो दैट चेंज फटीग आई सी इज़ वेरी रियल. सही. उसमें यू नो कि आपको चेंज कैटलिस्ट जो हैं, जो चेंज चैम्पियंस हैं, आई थिंक उनको जो है वो पहले ऑन बोर्ड करना पड़ता है. मेट बी एक्चुअली कंडक्टिंग अ कोचिंग पॉड्स फॉर देम और ब्रिंगिंग देम टुगेदर, जहाँ पे फिर वो दे गेट मर्ज्ड इनटू द सिस्टम और वहाँ पे वो फिर एज अ चेंज कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं. मे बी जो आपके लोग होते हैं, आपने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि एक कंपनी में लेट्स से उन्होंने कोई टूल इंट्रोड्यूस करा दिया, HR का ही टूल इंट्रोड्यूस करा दिया है और उसमें एज सिंपल एज दैट कि आपको एक लीव इनकॉर्पोरेट करनी है. लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वो जो सिस्टम और कल्चर से चलते हुए आ रहे होते हैं, तो सो यूज्ड टू ऑफ दैट, उनको वही कन्वीनियंट और ईजी लगता है. सो रियल टाइम में आपकी जो कंपनी है वो दे आर नॉट रेडी फॉर द चेंज, और आप उस पर कुछ भी इम्पोजिशन कर दोगे जस्ट लाइक दैट, तो दैट विल नेवर वर्क.
आपको उसके लिए पहले लोगों को इक्विप करना पड़ेगा, इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उनको आपने ट्रेन करना पड़ेगा, उनको कोचिंग करनी पड़ेगी कि व्हाई यू आर गेटिंग इनटू दिस, एंड उसकी जो ट्रू फैशन में उसकी जो ट्रू एसेंस है वो उनको जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उस चीज़ की कि ये किस तरह बिजनेस को बेनिफिट करने जा रहा है, ये किस तरह उन लोगों को खुद को एक्सपोजर देने वाला है, एंड हाउ यू नो देयर लाइफ विल गेट इजी ओनली थ्रू यू नो यूजिंग ऑल दैट. So what I would say again is that कि AI is not only just a tool, बल्कि वो it runs like a culture. Yeah. ठीक है ना? So you have to actually cultivate that. Yeah, true. And I think, like, just to add, I feel like you always add the word convenience, so maybe convenience in the form of, you know, tools, right? So anything that makes your work and life easier, faster, because now it's more about being more competitive and being ahead in the game. Exactly. Whether it's any industry, you name it, you need to make sure that you're able to be on that same level. Otherwise, the others will just crush you and move forward, and then that's when you're left behind with nothing. Yeah. So again, देखिए जो जिन सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं, they are maybe 100 और अब तो शायद मैं कहूँगी maybe 200 years ahead हमारे से. मैं ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, but obviously एक बहुत ही छोटा चंक है जो उनको फिर भी you know चेस कर रहा है कहीं ना कहीं. बट उन 3-4 बड़े शहरों को छोड़ के आपकी जो मेजर सारा पाकिस्तान का जो चंक है, तो स्टिल आई थिंक टेक 4.0 और 5.0 तो बहुत बाद की बात है. अभी तो आप मैनुअल सिस्टम पे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें स्ट्रगल किया जा रहा है. आपका जो बैंकिंग सिस्टम है तो उसमें भी आप देखें, एक्सेप्ट 1 or 2 बैंक्स, अभी भी आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी अगर आप देखें तो वो उसमें भी बहुत यूजर फ्रेंडली भी नहीं होती है, यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता है, इतना वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई है. एंड ऑल्सो टेबल की दूसरी साइड पे ये भी है कि लोग कितने यू नो इस तरह के हैं कि वो चला भी सकते हैं, टेक सेवी हैं. तो सो यही बात है कि इट्स अ कंप्लीट जर्नी, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जो दोनों साइड्स ऑफ द टेबल पे काम करने की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल, और फिर उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है. So let's go back to the same thing that you answered for Riyal, that changes की अगर हम बात करते हैं, what are those changes that you have seen yourself? So just highlight a few things, maybe policies or systems or procedures in the world of HR that has made things a lot convenient, easier, and less complicated. Because when we talk about HR, it's not about managing your human resource, right? It's also about managing the people and the system as well. Correct me if I'm wrong. नहीं, आप So बिल्कुल ठीक कह रही हैं. वो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दें, लाइक इन योर देखिए, पहले तो एक बहुत टाइम तक, आज से कुछ साल पहले, आप HR को एज अ सपोर्ट ऑर्गन ही देखा जा रहा था. ठीक है, आई से एंड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ नेम्स टुडे इन दिस वर्ल्ड ग्लोबली ये मानते हैं कि HR इज़ नाउ एक्चुअली द स्पाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना? अगर आपको बिजनेस लैंग्वेज नहीं आती उस HR को तो वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा नेचुरली. ठीक है, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट नाउ कि हाँ जी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लीव पे चले गए हैं, या अगर आप बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स को देखें तो वो ये देखते हैं HR की आंख, अच्छा जब बंदे चाहिए तो बंदे HR ला के देगा, एंड दैट्स वाई उनको वो वाइट एलिफेंट भी नज़र आ रहा होता है. ठीक है, क्योंकि वो उनको लगता है कि यार HR मीन्स खर्चा. सो लेकिन जब आप उसको एज अ बिजनेस पार्टनर देखते हो, जो नए मॉडल्स जैसे आ रहे हैं जहाँ पे वो फाइनेंशियल ऑक्यूमेंट भी रखते हैं, ठीक है, मार्केटिंग ऑक्यूमेंट भी रखते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी देख रहे हैं, वो आपका AI और डिजिटल सॉल्यूशंस को जिस तरह सेंट्रलाइज लेके चलना है उसको भी देख रहे हैं, वो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स को भी अपस्किल करने के बारे में देख रहे हैं. ठीक है, उनको कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके आपने मैक्सिमम बेनिफिट देना है, और जो आपकी नीड ऑफ द आवर है बेसिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उन एरियाज़ को, ग्रे एरियाज़ को फोकस कर रहे हैं. नॉट जस्ट यू नो पुटिंग द चेरीज ओनली ऑन द केक, ऐसा नहीं है सिर्फ. ठीक है, वो फैंसी डैशबोर्ड्स की हद तक अगेन नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी एक्चुअली मीनिंगफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. अच्छा, इसमें अब दोनों तरफ का रोल आता है, जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनका भी आता है, एंड देन जो HR रिसोर्स है उसका भी आता है कि वो कितना इक्विप्ड है और कितना एक्सपोजर लेके आ रहा है, यू नो. एंड देन ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी मैटर करती है बहुत ज़्यादा कि उसको कैसे प्लानिंग करके स्ट्रेटजाइज करना है. बहुत सारी अभी देखें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, मैकेंजी है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े जो नाम हमारे मुल्क में देखे जाते हैं उसमें अक्सर इन्हीं के ट्रांसफॉर्मेशंस रन हो रही हैं.
सो वो क्या एक्सपोजर लेकर आते हैं और किन इंडिकेटर्स पे आपके लिए आपकी स्ट्रेटजीज डिवाइस कर रहे हैं और उसको फिर कैसे दे टेकिंग इट थ्रू, दैट इज़ मेकिंग द डिफरेंस बेसिकली. चेंजेस तो बहुत आए हैं फॉर श्योर बहुत आए हैं कि अभी जो है वो पहले एडमिन और HR को एक ही आंख से देखा जाता था कि Yeah, ये सारे went on ऑपरेशंस the, like, यही different देख लेंगे, departments, ठीक yeah, है ना. yeah. बट नाउ HR के अंदर ही इतनी एक्सटेंसिव डोमेन्स आ गई हैं एक्सपर्टीज़ की कि अगर कॉम्प एंड पे का बंदा कौन है, रिवॉर्ड्स कौन देख रहा है, और OD कौन देख रहा है, टैलेंट एक्विजिशन कौन देख रहा है. सो ये एक पूरी अभी इट्स लाइक अ साइंस नाउ. बिल्कुल. आपके KPIs जो हैं वो एक दौर में ACR कहते थे, फिर वो वेटेजेस के साथ स्मार्ट गोल्स बनना शुरू हुए, फिर KPIs बनना शुरू हुए, आजकल OKRs पे हो रहा है. सो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं एंड इट्स टेकिंग इट्स शेप नाउ मोर टुवर्ड्स द बिजनेस गोल्स. And I feel all of this, when added together, gives you a big reward in terms of you able to retain your employees and making sure that they're able to add value to the organization, not just business wise, but professionally and personal level पे भी they're able to do that. Because now I feel HR का काम सिर्फ, like back in the days we used to think, yeah, HR is only here for hiring or firing people. No, there's a lot to do, in that domain. There's trainings, there's coaching, like you mentioned. And I also feel that a workplace पे there's more that you can add for an invaluable experience. जिसमें आपका culture is the most important aspect that needs to be considered. Culture itself is an umbrella term जिसके अंदर बहुत सारे other categories and domains भी आ जाते हैं. So we talk about diversity, we talk about having multicultural environment and making sure that we're also catering to also inclusivity, I think. So my next question is about inclusivity and diversity, and how do you professionals, like people who are closely working with the team, employees and the management, and you're more like somebody who's able to bridge that gap, and you can't have these two things separate. It has to be one thing, one shared goal. So how does culture play a very pivotal role when it comes to maintaining that peace, harmony, and then everybody is able to give their bits and bob to the organization, and how do they develop over the years? So what happens कि हमें कल्चर भी एक बड़ा फैंसी टर्म लगता है कि जी हाँ जी कल्चर को अपग्रेड करें, लेकिन अथॉरिटीज़ जब तक ये कहती रहती हैं कि कल्चर को अपलिफ्ट करें और इसको आपका ये ठीक नहीं है, आपका ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है. बट ये मेरे ख्याल में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या प्रैक्टिसेस कल्टिवेट कर रहे हैं खुद से, बिकॉज ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट है. कल्चर जो है वो हमेशा से टॉप टू बॉटम जाता है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एज अ स्ट्रैटेजी हमने एक टूल सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया है और बहुत ही सिंपल फॉर्म में उसको लेके जाते हैं कि अब आपकी जो लीव एप्लीकेशंस हैं वो मैनुअल नहीं होंगी, वो पोर्टल के थ्रू रन होंगी. ठीक है. अब एक कोई HOD आते हैं और वो कहते हैं जी मैंने CEO के पास डायरेक्ट जाके अपना फॉर्म हाथ में पकड़ा हुआ है, HR से वेट नहीं हुआ है, और वो डायरेक्टली जाके वहाँ अपनी एप्लीकेशन साइन करा लेते हैं ऑन हिज फेस वैल्यू और गुडविल. ठीक है. और अगर वो अथॉरिटी साइन कर देती है उस डॉक्यूमेंट को तो इट किल्स ऑल द एसेंस. ठीक है जी. फिर उस एक्सपेंस का, उस कॉस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, उस एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी पूरी टीम ने लगाई है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग दैट टूल एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, एंड देन जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो एम्पावर्ड ही नहीं है टू डू एनीथिंग और उस सिस्टम को बाईपास करके कोई भी चल सकता है, एज सिंपल एज दैट, तो वो कल्चर जो है वो बनाने वाली जो है वो अथॉरिटीज़ ही हमेशा रहेंगी. उनका बड़ा मेजर रोल है. They definitely set the precedent from day one. That, and then like I mentioned, you guys are acting like middleman. Like how are you able to bridge that gap, and you're able to make sure that you're able to communicate the basic requirements or the sole purpose why they're here and what they can do. So I think yes, definitely culture, I feel, and I feel now that HR itself is very open in terms of taking valuable feedback from the employees and from the top management as well, and how they can make sure that there's peace that is being maintained from both parties. Yes, exactly. I totally whether agree. it's be the employer or the employee or the employment relationship, किस तरह हम strengthen कर सकते so हैं. also just to add on to the previous one, in terms of picking up the new trends also, ठीक है ना, you're devising a culture of taking care of your employees as well as an empathetic organization also. ठीक है ना. अभी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से नहीं देखा जाता है. फ्लेक्सी आवर्स की बात होती है, इन हाउस बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो
जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पे आप देख रहे हो, वो ऑब्जर्व कर रही हैं वो सारी चीज़ें। आपको लीव्स के अंदर बहुत सारा कोटा ऐसा एलोकेट होता है जो कि स्पेशल केसेस के लिए देखा जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं उसमें। अगर आपका काम हो रहा है, इफ़ यू प्रोडक्टिव, अगर आप अपने KPIs अपने गोल्स पूरे कर रहे हैं, तो आई थिंक जो अदर वो कैरेक्टरिस्टिक वाला जो पुराना मॉडल है वो अब कहीं ना कहीं कि आपने 8 घंटे पूरे दिए हैं या नहीं. हाँ। So I also feel like your productivity cannot be matched with the amount of hours you spent at work. Yeah. But how do you make those hours productive is what really matters. So even if you work for like 5 hours Yeah. and you sit down and do nothing for 3 hours, but those 5 hours, if they are able to create something valuable, then that's what matters. And I also, feel. और अब बहुत change भी हो गया. Like Yeah. you look at the Western society now, they've started doing like a 4-day work Yes. week. Not So- only there, even in Pakistan, I can name a few companies जो कि 4 Well, days a they week could be कर very रहे हैं. less. There are, but at least there is a trend that's emerging now. So उसी को जब आप बड़े जो नाम है जब वो precedent set करते हैं, they're laying the foundation and encouraging the other companies as well कि look how they are performing this certain model as well जो उसको आप कर सकते हैं, endorse कर सकते हैं, तो why not? तो बिल्कुल. अभी इसी तरह a lot of companies are also, some few big names, they're also observing Fridays as hybrid. I mean, work from home. Bilkul. Especially like I've seen like in Ramadan also a lot of people struggle with like, fasting as well. So I think in Pakistan also they've become very flexible. So flexi hours, yes. Remote opportunities, like let's say if you're not feeling too good to show up to work, maybe you can just sit at home and do that at your own convenience as far as getting the work done, as far as you're there to help and cater. So globally as well, अगर आप अपने जिसकी अगर कोई एक्सेस है बाहर, कोई कजन्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं, तो दे कैन ऑल्सो टेल यू कि यार ये वेकेशन इतनी ज़्यादा कैसे कर लेता है. मे बी बिकॉज दे कैन वर्क फ्रॉम होम एंड देयर कंपनीज अलाउ देम लाइक दैट कि अगर कोई ऐसा सर्टन सिनेरियो है जहाँ पे वो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दे आर एक्चुअली ओपन फॉर दैट कि हाँ जी अगर वो काम हो रहा है तो उसमें देयर आर सर्टन मोडालिटीज़ जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं. बिल्कुल. You're right. And you also mentioned something about coaching and training. I think that is also something which is very imperative when it comes to the overall growth of the organization. Like, I feel every single person here, you, me, we're all a work in progress, right? There's always something that you can add on to your own professional and personal journeys, right? So training, I think, comes in handy as well. What would you like to discuss when it comes to training and having that coaching mindset? Okay, this is what we're doing, but maybe we can do better, and then this is how we're going to go forward. So basically, देखो, because I am a NLP practitioner as well, a coach as well, और तो हमारा जो ट्रेनिंग वाला मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. जो हम जहाँ देखते हैं कि आजकल जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स लेट्स से लोग करवाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि वो सिर्फ अपना जो बजट का टिक मार्क है वो चेक बॉक्स पूरा हो रहा होता है कि हाँ जी 5 एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स हमने करा ली. लेकिन अगर वो प्रॉपरली उसका एसेंस नहीं निकल रहा, उसका ROI नहीं निकल रहा, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है जो आपने देखनी है, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सच ट्रेनिंग्स. ठीक है ना. सो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक आफ्टर मैथ्स भी रखी जाए. ठीक है ना. और जहाँ पर हम NLP की बात करते हैं, तो अगर आपकी एक रेगुलर ट्रेनिंग जो है वो आपके बिहेवियर्स को फिक्स करती है जहाँ पे, तो NLP जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है. एंड बिलीफ सिस्टम ओनली शेप्स द बिहेवियर्स. Definitely. So उसमें होता ये है कि आपको आपका एक मेंटल रीवायरिंग हम करते हैं, वो भी ट्रेनिंग ही होती है, बट देयर इज डिफरेंट टेक्निक एंड मोडालिटीज बिहाइंड दैट, डिफरेंट अप्रोचेस बिहाइंड दैट. So yeah, I think mindset can only drive the effective training systems. अगर आप जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आपने उसको बेसिकली सही तरह कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, पहले तो वो इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है कि क्या आप ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो क्यों कराना चाहते हैं, व्हाट्स द नीड ऑफ दैट. जब आपको वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कस्टमाइज्ड चीज़ें डिज़ाइन होती हैं. उसके बाद अगर कहीं इंडिविजुअल 1-on-1 कोचिंग की ज़रूरत है तो फिर उसके अंदर काम किया जाता है. देयर आर सर्टेन सेशंस इन दैट आल्सो. And nowadays I've also seen like a lot of organizations, like they do have these fancy trainings and things going on for the employees, like they've started catering to those taboo topics as well, like mental health. So I feel like now HR is also closely working towards the well-being as well, like I mentioned. So
They're more like a therapist that you don't have to pay Yes. for. Yeah. So, and I feel like the human psychology is very closely linked with what HR does at the organizations too. So when you mention about, organization development, and when you talk about employee development and how they can grow professionally and personally as well, because it's very important for them to also realize what they're capable of. And that's when these trainings, they come in handy. So I've seen a lot of that happening. Workplaces where you see HR catering to a lot of other things as well. Celebrating those specific days where employees, get that time off from work to avoid like burnout, and also to make sure that they're excelling in that career ladder as well. Because then it becomes very monotonous. You see, 9 to 5 or 9 to 6 कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं. So they sometimes, they need that change. So of course, all of these changes, let's say hybrid models हो गए या flexi hours हो गए, very important. I've seen a lot now even that, even mothers, the ones who have taken a break due to motherhood, right? तो उनके लिए भी like they've started bringing their kids, even in Pakistan, पहले हम सिर्फ Western society में देखते थे, but even in Pakistan, like I've seen people, mothers, they bring in their kids to work as well, जो कि बहुत empowering भी है. So basically ये वही बात है अगेन कि उसको हम इस तरह से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए ट्रेंड्स हैं जहाँ पे आप एम्पैथेटिक माइंडसेट बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उसके अंदर जो है आप वहीं पर ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि जहाँ पे वो दे कैन वर्क मोर इफेक्टिवली. सो ऑल्सो जिसमें एक अभी आपने बात की तो ख़वातीन की जो कि अपना एक करियर ब्रेक आ जाता है, तो वो रिटर्नशिप प्रोग्राम्स आजकल ऑफर हो रहे हैं उनके लिए. सो अब आप एडवर्टीजमेंट लिंक्डइन पे भी बहुत देख रहे होते हैं कि ऐसी भी चीज़ें हैं. सो अब इवॉल्व तो कर रहा है, हमारा भी सिस्टम इवॉल्व कर रहा है ऑब्वियसली. एंड ऑल्सो आपका जो सेकेंड पीस था अबाउट द मेंटल हेल्थ, सो येस AI अगेन उसको भी बहुत सपोर्ट करता है. ठीक है, एक तो आप HR लेवल पे जो मेंटल वेलनेस अवेयरनेस और जो आप एक एम्पैथेटिक अप्रोच रख रहे हैं वो दैट्स वन पीस ऑफ इट. बट जहाँ तक बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो आप अगर देखो तो बॉट्स अटैच हो जाते हैं विद द सिस्टम्स, और इंडिविजुअलाइज पर्सनल आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये बॉट्स, जहाँ पे उस कॉन्वर्सेशन से जो आप कर रहे हैं चैट ड्यूरिंग द डे, वहाँ पर वो बहुत सारे असेस आपकी चीज़ें कर रहे होते हैं कि कोई बर्न आउट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो देयर इज लॉट ऑफ डेटा that is collected for your support only, and that comes under like the employee feedback thing that you guys also cater to. हाँ, so देखो इस पे बहुत सारे चैनल्स निकलते हैं. If somebody is going through something and that has been highlighted कि हाँ जी ये एक चीज़ जो है वो पॉपअप कर रही है, तो फिर एक इंडिविजुअल सेशन भी रखे जाते हैं, थेरेप्यूटिक सेशंस जो इन हाउस काउंसलिंग की जा सकती है, जहाँ तक की जा सकती है वो की जा सकती है. देन ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसी गैप्स आपको नज़र आते हैं, लेट्स से आपके जो ये डिजिटल सिस्टम्स हैं, तो वो खुद ही पिकअप करते हैं कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है कि इस एम्प्लॉय का करियर पाथ क्या बनना चाहिए, इसको किस किस एरियाज़ में सपोर्ट की ज़रूरत है, लेट्स से कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो इसको करानी चाहिए और रिकमेंडेड हैं इसके लिए. सो वो सारी एरियाज़ पे काम किया जा सकता है. सो इट्स अ वेरी वास्ट वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग अप वेरी फास्ट. And now I've also spotted this, that organizations are very closely working with their employees and the top management itself in making sure that they're boosting the confidence of their existing employees. Okay, bhai, apart from you working for us, there's a lot that you can do to upskill yourself for your own professional and personal journeys as well. So they're more into like, two-person branding, make sure that you're representing us, but at the same time, you're also adding more like brownie points into your own domain as well. So ye jo culture hai na of like celebrating their wins as well is, I feel, a plus point for the organizations, because that is when the employees are also feeling that they are a part of the organization. Ek wo sense of belonging aati hai, I think. And that is equally rewarding for both ends, whether it's be the organization or the individual itself. So what I would say कि देखो जब आपका एक एम्प्लॉय आपकी ब्रांडिंग करता है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो आपको देखें वो ब्रांडी पॉइंट्स जो आपने कहे, तो वो उस कंपनी की भी तो मार्केटिंग कर रहा है. बिल्कुल. सो आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि थोड़ा सा ये एक इसके अराउंड क्लीशे था कि जी नहीं सपोर्ट करते थे इस आइडिया को कि हाँ जी वर्किंग आवर्स में कोई अगर
इवेंट्स पे जा रहे हैं, अटेंड करना है एंड ऑल दैट, और परमिशंस लेनी पड़ती थी और इतना इसको इनकरेज नहीं किया जाता था. बट नाउ आई थिंक कि लोग खुद अपने जो लाइन मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक दो को भेजेंगे कि हाँ जी ये 2 लोग चले जाएं इस इवेंट को अटेंड करने. एंड ऑल्सो जो सी सूट है, जो बिगर नेम्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, दे आर ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे विजिबिलिटी क्रिएट होती है. नॉट जस्ट उनकी विजिबिलिटी क्रिएट होती है बल्कि जिस कंपनी से वो एसोसिएटेड होते हैं उनकी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो रही होती है. So it's one way to I think brand themselves and the company as well. So जो अगर आप progressive हैं और open minded हैं तो वो लोग इन चीज़ों को pick up कर रहे हैं. But हाँ, having said that, at the same time बहुत सारी आज भी ऐसी companies हैं जो अपने employees को restrict भी कर रही होती हैं, which is not very so appreciated. Adding to this point that you mentioned, that restricting, I think another word that employees actually run away from is micromanaging. What do you have to say about that? Because now वो वाला जो mindset है ना कि यार 24 घंटे सर पे बॉस खड़ा हुआ है, get this done right now. I don't think it works anymore. I think not at all. I think अब देखिए वही मैंने जैसे mention किया थोड़ी देर पहले कि carrot and stick जो है ना वो मॉडल अभी कहीं ना कहीं जो है ना it's weaning off. ये निकल रहा है अभी सिस्टम से. It's not working at all. So उसके अंदर जो है आपको what you call that कि giving that margin to excel. अब आप एक एम्प्लॉय को अपने सिस्टम में इंडक्ट करके लाए हैं, ट्रस्ट इन हिज कैपेसिटी ऑल्सो, चेक हिम कि वो जो उसका स्किल सेट है क्या इट इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग योर गोल्स, आपके जो भी बिजनेस के जो टारगेट्स हैं या जो भी परफॉर्मेंस है उसकी, क्या वो उन पे अगर आ रहा है, उसके KPIs जो बनाए हुए हैं, इफ़ इज़ परफॉर्मिंग. तो आई थिंक अब सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आई हैव सीन दैट कि वो ऑटो पे चलती हैं चीज़ें और रिलैक्स चलती हैं ऑटोमेटिकली. हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट आज भी वहाँ होगी जहाँ पर एडहॉकिज्म है, जिन कंपनीज़ में जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, और बहुत ही अभी जैसे मशरूम एंटरप्राइजेज आप कह लें, छोटी छोटी SMEs हैं जो अभी शायद अभी दे नॉट रेडी फॉर उस तरह की बेंचमार्किंग के लिए. सो वहाँ ये माइक्रो मैनेजमेंट के सिनेरियोज आपको ज़्यादा नज़र आते हैं. टू मच ऑफ पावर डेलीगेशन टू वन पर्सन आ जाता है. One person can be close to the authorities too much and might act like a butterfly for them as well. So होता क्या है कि वो बहुत सारी जो नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है वो उस पावर डेलीगेशन की वजह से हो रही होती है. सो जब आप एक सिस्टम और स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जो एक पॉलिसी है उसके अंदर अगर आप आके हर कोई अपने साइलोस में काम करता है, बट ऑब्वियसली वो आपने अपना साइलोस के साथ साथ जो क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन है दैट हैज़ टू बी देयर ऑफ कोर्स. बट जब आपको पता है कि दिस इज़ माय एरिया, दिस इज़ माय डोमेन एंड दिस इज़ माय टारगेट और आपकी असेसमेंट उसी पर ही होनी है, तो फिर मेरा ख्याल है माइक्रो मैनेजमेंट नहीं ज़रूरी होती. एक और मसला जो आता है वो ये है कि ओपन जो फीडबैक है जो आपके लाइन मैनेजर से आपको मिलना चाहिए वो अ लॉट ऑफ टाइम नहीं आ रहा होता. सो जिस तरह हमने बात की कि NLP के थ्रू भी हम इन चीज़ों को भी करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो लिमिटिंग बिलीव्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं होल्ड कर रही होती है, कहीं ना कहीं आपको फीडबैक देने से भी मतलब हॉल्ट कर रही होती है. तो वो उसका बड़ा एक ये रहता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय है, अगर आप उसको फीडबैक ही नहीं दे रहे हो कि what he needs to improve और उसने क्या करना है आगे, किस तरह चलना है, आप he or she is lacking, या फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करनी है, अगर वो वहीं तक ही नहीं आ पा रहा है then there is no point. So yeah. So Faryal, with the deep involvement in the board governance and gender diversity, could you also talk about the initiatives like Women for Board Allies? Like, how did you envision that future for women, especially when you talk about the corporate culture? So how has that been so far? So देखिए, जहाँ पर हम वुमेन ऑन बोर्ड की बात करते हैं तो एक छोटा सा डाटा आपसे पहले तो मैं शेयर करती हूँ, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द SSCP रिपोर्ट्स ऑफ ईयर 2022, जहाँ पे जो एक्टिव पार्टिसिपेशन थी ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड वाज ओनली 4%, विच इज़ अगर हम उसका कंपैरिजन करें विद इंडिया, सो इट्स 17.5% ओवर देयर. उनकी जो मास इकॉनमी है उसके हिसाब से ही परसेंटेज निकली हुई है. एंड अगर हम नॉर्वे को उसके सामने देखें तो दैट इज़ 30%. सो अगर हम एक कुछ बड़े नाम देख रहे हैं जो हमारे उसके अंदर अगर आते हैं तो उसमें हम पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जो लोग बोर्ड पर हैं वो दे आर फॉर एवर. ठीक है ना. सो अब देखें, अब ये शेडो करना फॉर द बोर्ड, उसके लिए रिसेप्टिव होना वहाँ पे भी ज़रूरी है. वो लोग कहते हैं कि जी द पाइपलाइन इज़ नॉट रेडी, the pipeline is not groomed enough.
ठीक है, ये बातचीत होती है. बट आई वुड से कि हु वुड मेक देम रेडी, हु वुड ग्रूम देम. अगर जो एक लेट्स से 4% की जो पोजीशंस हैं अगर उस पर वही लोग ही रहेंगे तो हाउ वुड न्यू ब्लड वुड कम इन, ठीक है ना, हाउ वुड दे गेट ग्रूम्ड. सो एक तो कंपनीज के अंदर ये भी बात है कि जस्ट सिर्फ टोकनिज्म पे बात ना करें, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक ना करें. जो कोर कमेटीज़ होती हैं वहाँ पर ही हैंड होल्डिंग शुरू करें, वहाँ पर ही इसका शेडो वर्क शुरू करें, जो कि इसको आपको जो है ना वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है. सो द न्यू ब्लड कमिंग इन नीड्स दैट काइंड ऑफ ग्रूमिंग एंड पॉलिशिंग, जो कि ऑब्वियसली जब वो बैठेंगे कोर मेंबर्स के साथ ओनली देन दे विल गेट द चांस. सो इफ अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन वन ऑफ द कंपनीज विद द कोर कमेटी मेंबर्स, जहाँ पे सारा सीनियर बोर्ड बैठता था इन द न्यू बिजनेस वायबिलिटीज़ एंड फिजिबिलिटीज़, और उसमें बिजनेस डिसीजंस के अंदर डिस्कशंस होती थी. कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं तो आई यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ that also, so which only helped me in improving my business acumen as well. That how do you run certain scenarios or sets, or kis tarah se you actually read the feasibility of a project as well. What are the main budgeting structures for any department or the function. So ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, और वो फिर तभी हो सकती है जब आपको जो है ना वो एक्चुअली एब्जॉर्ब किया जाए इनटू द सिस्टम. सो अगेन द पाइपलाइन, उसकी ग्रूमिंग, एंड देन द टोकनिज्म जो है ना उसको सिर्फ कोटा ना पूरा करें, बल्कि आई वुड से कि उसको CEO की जो उसका ग्रोथ लिवर है उसका पार्ट बनाएं, उसके KPIs का पार्ट बनाएं, सो दैट इफेक्टिवली जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके सिस्टम में. Oh, yeah. That should be one strategy that one can look into, definitely. And I feel like, we have to break that glass ceiling. So previously it wasn't there, but now I've seen a lot of females, especially, they're being, on the top when it comes to their own professions, or being in a company setting, or even doing their own startups, I feel. Acha, so again, I just wanted to ask about the leadership development challenges that you can maybe shed some light on, considering that now we have new improved systems for HR. Yeah. So देखिए, अगर आप यंग पाइपलाइन के बारे में बात करें जो कि दे स्टेपिंग इनटू द लीडरशिप रोल्स, तो स्टेप नंबर 1 जो पहला पिलर है उसका वो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस और इनर वर्क. ठीक है, हाउ मच यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितना काम किया है अपने स्किल सेट के ऊपर. इफ़ यू आर इफेक्टिव इनफ, इफ़ यू हैव दैट स्किल सेट, तो nothing can hold you from being a good leader. ठीक है, eventually you'll be absorbing the key positions and then doing your work in an amazing way, I guess. लेकिन self awareness होनी चाहिए कि where I am standing right now. आप किसी को lead करने से पहले अपने आप का रिफ्लेक्शन करेंगे कि आप self analysis, can you be a good leader, और what are the plus points in you and what are the negative points in you, और कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है. सो यंग लॉट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को पहले ग्रूम करें इन दैट वे कि दे मस्ट नो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या उनकी रिफ्लेक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करती हूँ, अगर कोई अपना हम थेरेपिस्ट भी हैं या अगर कोई साइकाइट्री के अंदर भी है, तो उन्होंने अपने लिए भी उनको भी एक चाहिए होता है, बिकॉज only then they can pass on their own support systems too, so उनका अपना support system भी होता है जहाँ पे they're brushing off their negative marks as well. ठीक है, so I think पहले स्टेप पे तो यही चीज़ आ जाती है. एंड सेकेंडली जो सिस्टम थिंकिंग है, अगेन वही बात करूँगी कि बिजनेस गोल्स जो आपके हैं उनके साथ आप कितना अलाइंड है, आपका ऑक्यूमेंट कितना रेडी है, आप कितने इफेक्टिव हो सकते हैं इन दैट एरिया. बिकॉज अगर आपने बिजनेस को सपोर्ट करना नहीं सीखा है, देन आप एक अच्छे HR लीडर भी नहीं हो सकते हैं. वन ऑफ द ट्रेनिंग्स एज एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर दैट, जो जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनीज के अच्छे रिसोर्सेज आए हुए थे, सीनियर पोजीशंस पे लोग आए हुए थे, मिड लेवल सीनियर रिसोर्सेज थे, जो अपेरेंटली लग रहा था कि दे वुड बी स्टार प्लेयर्स ऑफ देयर कंपनी बाय द लुक ऑफ देम. बट इन द Q&A राउंड ओनली, जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हुआ, तो HR के रिसोर्सेज ने कहा, ट्रेनर से क्वेश्चन किया कि जी हाउ वुड वी नो कि बिजनेस को क्या चाहिए. हम तो अपना जो रिक्वायरमेंट है HR की वो पूरी कर रहे होते हैं, तो हाउ वुड वी नो but then बिजनेस की you क्या need to be रिक्वायरमेंट है. somebody who is aware as well.
not only aware, And you you should need be the catalyst only yeah, as know well. how हाँ, know how honi chahiye Yeah. about the business that you're a part हाँ. of, so the company that you're a part yes, of. so आप उसके अंदर कोई इफेक्टिव चेंज नहीं लेके आ सकते आप, बिल्कुल. बिकॉज यू आर द शो रनर एज Spot वेल. on, like- आपका एक बहुत बड़ा रोल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपको ये नहीं पता कि बिजनेस काम क्या करता है इन द फर्स्ट हाँ. प्लेस, उसकी needs क्या है, requirements क्या है, gaps क्या हैं, और loopholes gaps- कहाँ से Yeah, हम yes, fulfill कर exactly. सकते हैं, then Yes, yes, yes. of In course terms you of should know your stability. game, you Yes, should know you your should ace it things, that way. you know, in Yes. and out, like I think that is very And I think the important. last point over there is courageous communication. A lot of times आप देखो सीनियर मैनेजमेंट में भी ये होता है कि आप, क्योंकि हमारा कल्चरल बायसेस भी ऐसे हैं कि वो आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में एंड बहुत उसमें हेजिटेशन रहती है. सो अनलेस एंड अनटिल यू रजिस्टर योर पॉइंट्स, अनलेस अनटिल जो एथिकल फ्लैग्स हैं, जब तक आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे, यू इफ़ यू डोंट वॉइस दैम, और आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे बोर्ड को या चार्टर को, तो फिर जो है ना आप बहुत पीछे रह जाते हैं गेम में. सो आई थिंक अगर इन 3 चीज़ों पे काम कर लें तो यू कैन फ्लाई. You can fly. Yeah. Thank you so much, Faryal, for being a part of this session. It was lovely to have you over, and I'm sure we shared some great insights on HR and leadership roles, specifically when it comes to organizations, when we talk about elevating people and empowering organization. Thank you so much for listening. Stay tuned for another session.